Hello dear children, I hope you all are fine and taking good care of yourselves. Today we are going to move on to our new chapter of English grammar of standard 8th, that is chapter number 17. Yes, transformation of sentences. Today we are going to learn how we can transform the sentences from one form to another. So we'll start with the textbook explanation, that is chapter number 17, transformation of sentences. So here some examples are given. The first we'll read the sentences. The first one is, he drives a red car. Second is, who drank all the milk. Third one, please give me a pastry. And the fourth one, what a superb performance. Now what can you make out from these four sentences? Yes, they are kinds of sentences which you have already learned in lower standard. That is, I'll again explain you. We know that there are four kinds of sentences. The first one, that is declarative sentence. Yes, are used to give information or make an assertion. The first sentence is a declarative sentence. जो फर्स्ट सेंटेंस इसमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है, सिंपल सेंटेंस दैट आर कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं. उसका दूसरा नाम है एसर्टिव सेंटेंस ऑल्सो. देन द नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, जिसमें पीछे क्वेश्चन मार्क आता है और जो क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव sentences. The second sentence is an interrogative sentence. The third comes imperative sentence, are used to give instructions or orders and make requests. जो यूज़ होते हैं जिसमें हम ऑर्डर देते हैं, ऐसे हमें ऐसा सेंटेंस हो जो रिक्वेस्ट किया जाता है, या कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, ये सब होता है imperative सेंटेंस में. The third sentence is an imperative sentence. And the last comes exclamatory sentences are used to express strong feelings. जो सेंटेंस बोल के हमारी फीलिंग एक्सप्रेस हो सके उसे कहते हैं exclamatory sentence. And in this the last sentence is an exclamatory sentence. So dear children, you can make out there are four types of sentences. One is declarative, second is interrogative, third is imperative and fourth one is exclamatory. इसमें आप easily make out कर सकते हो. दो जो है interrogative में पीछे question mark होगा, exclamatory में पीछे exclamatory mark होगा, और जो दूसरे दो है declarative और imperative. declarative होते हैं जो हम लोग रेगुलर बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, और जो इम्परेटिव है उसमें आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, प्लीज़ करके कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऐसे टाइप के सेंटेंस होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट कम्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस. अब इसमें एनी टाइप ऑफ सेंटेंस कैन आइदर बी अ पॉजिटिव सेंटेंस और अ नेगेटिव सेंटेंस. अब कोई भी सेंटेंस हो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. इसमें पॉजिटिव मतलब उसमें नेगेटिविटी कुछ दिखाई नहीं दे, पता नहीं चलती है. जैसे इन अ पॉजिटिव सेंटेंस इंफॉर्मेशन इज गिवन विदाउट द यूज ऑफ द वर्ड्स लाइक नो, नेवर, नॉट, नन एंड सो ऑन, जिसमें ये वर्ड्स नहीं आते हैं. ये नेगेटिव के लिए ही यूज़ होते हैं ये सारे वर्ड्स, नो, नॉट, नेवर, नन, ऐसे. Whereas a negative sentence uses these words to convey information. और जो negative sentence होता है उसमें ये words होते हैं no, never, not, none. Okay, so these two are positive, about positive and negative. उसमें negative का form हम कैसे लिखते हैं? It is about that. Not or an apostrophe t comes after the auxiliary verb and joins with it when we speak. ये ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आता है और हम कभी कभी उसको ज्वाइन कर देते हैं. एन टी जो होता है वो हम उसे ज्वाइन कर देते हैं जब हम बोलते हैं तब. जैसे डू नॉट, ये डू ऑक्सिलरी वर्ब हुआ, उसके पीछे आ गया नॉट.
नेगेटिविटी में, बट जब हम बोलते हैं तो समटाइम्स वी से डोंट, वी जॉइंट दैट। वॉज नॉट का वॉजंट, हैज़ नॉट का हैजेंट एंड विल नॉट का वॉन्ट। So this way, first we'll move on to our first exercise, how you have to do it. In this, you have to write positive sentence as instructed. अब ऐसे जो instructions are given कि आपको अपने आप से own sentences form करने हैं, but positive sentence जिसमें no, never, not नहीं आना चाहिए। कोई भी सेंटेंस, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि विच एवर आई हैव रिटन दैट ओनली यू हैव टू राइट, यू कैन मेक एनी ऑफ योर सेंटेंस बट दिस इंस्ट्रक्शन शुड बी यूज्ड इन दैट। जैसे फर्स्ट वन इज एक्सप्रेस अप्रूवल, कि कुछ अप्रूवल दे रहे हैं कि हाँ बोल रहे हैं, उसके लिए कौन सा सेंटेंस आप बोलोगे, जैसे यू डिड द राइट थिंग, तुमने सही किया, ऐसे यू आर गिविंग अप्रूवल। देन द सेकेंड इज एक्सप्रेस सिंपैथी, किसी के लिए सिंपैथी फील करना, ऐसा सेंटेंस यू हैव टू राइट कि आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील। देन द थर्ड वन इज थैंक समवन, किसी को थैंकफुल बोलते हुए होते हुए सेंटेंस यू हैव टू राइट थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प, दिस वे यू कैन राइट अनदर फॉर्म ऑल्सो। देन द फोर्थ वन इज आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, किसी से कुछ इंफॉर्मेशन पूछते हुए सेंटेंस लिखना है। सो द सेंटेंस विल बी कैन यू गिव मी सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द कोर्स, क्वेश्चन मार्क। इंफॉर्मेशन जब आप पूछ रहे हो तो पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा। द फिफ्थ वन प्रॉमिस टू डू समथिंग, किसी को कुछ प्रॉमिस करते हुए, तो आंसर इज आई विल श्योरली हेल्प यू। देन सिक्स्थ वन इज प्रेडिक्ट समथिंग, कुछ प्रेडिक्ट करना, कुछ अंदाज़ा लगाना, तो कैसे लगाओगे, इट कुड रेन टुडे, अंदाज़ा लगाते हो कि शायद बारिश होगी। देन द सेवेंथ वन एडवाइस समवन, किसी को कुछ एडवाइस देते हुए, सलाह देते हुए, यू शुड वर्क हार्ड, इसमें आप दूसरा कुछ भी ऐड कर सकते हो कि यू शुड डू योर वर्क ऑन टाइम, ऐसे यू कैन राइट योर ओन सेंटेंसेस ऑल्सो। एंड द लास्ट वन इज इन्फॉर्म समवन, किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन देते हुए, कुछ इन्फॉर्म करते हुए, यू हैव टू राइट द सेंटेंस देयर इज़ अ टेस्ट टुमारो, कल टेस्ट होगी, देयर इज़ अ टेस्ट टुमारो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकेंड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बी। इन दैट यू हैव टू कन्वर्ट दिस पॉजिटिव स्टेटमेंट्स इनटू नेगेटिव स्टेटमेंट्स। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं आपको, उसमें नेगेटिविटी मतलब नॉट, नो, नेवर, नन, ये वर्ड्स यूज़ करके सेंटेंस करना है। सो हाउ विल वी स्टार्ट, जब इसमें हमेशा बी वर्ब आता है तो आपको बी वर्ब के पीछे हमेशा नॉट लगाना होता है, और अगर बी वर्ब नहीं है, सिर्फ वर्ब है, दैट टाइम व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड डू या डज डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डज लगाओगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप डू लगाओगे और उसके साथ नॉट का यूज़ करोगे। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? नाउ इन दिस आर इज़ ऑलरेडी द बी वर्ब, तो इसके पीछे खाली नॉट लग जाएगा, तो सेंटेंस कैसे बन जाएगा, देयर आर नॉट मैनी वेजिटेबल्स इन द रेफ्रिजरेटर। अगर इज एम आर, वॉज वेयर, हैज़ हैव ऑलरेडी है सेंटेंस में, तो उसके पीछे ही खाली आपको नॉट लगा देना है और कुछ नहीं करना है। देन सी द सेकेंड वन, लीना विल बी गोइंग टू पौंडीचेरी टुमारो। अब इसमें विल बी वर्ब है तो विल के बाद नॉट लग जाएगा, सो दिस वे यू कैन पुट द एरो एंड राइट डाउन नॉट हियर। तो सेंटेंस कैसे बन जाएगा, लीना विल नॉट बी गोइंग टू पौंडीचेरी टुमारो। अब इसमें स्पेस नहीं है इसीलिए आप एरो करके लिख रहे हो, बट इन एग्जाम यू हैव टू राइट द फुल सेंटेंस विथ नेगेटिविटी। नाउ सी द थर्ड वन, दिस फिल्म रैंक्स एज वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट्स। अब इसमें देखो रैंक्स वर्ब दिया हुआ है और जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो आप उसमें क्या लगाओगे, डज। तो और डज जब आप लगाते हो तब एस निकल जाएगा, तो सेंटेंस कैसे हो जाएगा, दिस फिल्म डज नॉट रैंक एज वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट्स। Then fourth one you see, Mayank wanted to go
टू द कॉन्सर्ट यस्टरडे। अब वांटेड है वो पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस हो तब आप डू डज यूज़ करते हो और पास्ट टेंस में आपको डिड लगाना है। और डिड जब लगाओगे तो ये जो पास्ट टेंस का वर्ड है वो प्रेजेंट टेंस में चेंज हो जाएगा। सो हाउ द आंसर विल बिकम, मयंक डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू द कॉन्सर्ट yesterday, दिस वे। नाउ सी द फिफ्थ वन, माई फ्रेंड्स एंड आई वर प्लानिंग टू एनरोल फॉर दीज योगा क्लासेस। अब वर्ब बी वर्ब है तो डायरेक्टली आपको वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। तो आंसर विल बी, माई फ्रेंड्स एंड आई वर नॉट प्लानिंग टू एनरोल फॉर दिस योगा क्लासेस। नाउ द सिक्स्थ वन, द क्राउड वॉज कैप्टिवेटेड बाय द मैजिशियंस परफॉर्मेंस। अब इसमें भी वॉज बी वर्ब आ गया तो वॉज के बाद खाली नॉट लगा देना है आपको। So the sentence will become, the crowd was not captivated by the magician's performance. See the seventh one, Zainab visited all the famous places on her recent visit to London। अब visited जो verb है वो past tense है तो past tense में आप क्या use करोगे, did not। yes, very good। So and this visited will change to present tense। So the sentence will become, Zainab did not visit all the famous places on her recent visit to London। Now see the last one, you will be tired after all the running। So here will be verb है तो will के बाद you will just put not। So the sentence will be, you will not be tired after all the running। Now dear children, let's move on to the next topic। Here it is given about इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यस, इन दिस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा पीछे क्वेश्चन मार्क आता है। We change declarative sentences into interrogative by interchanging the position of the subject and the auxiliary verb। इसमें अगर आपको कोई डिक्लेरेटिव सेंटेंस दिया हो और उसको आपको चेंज करना है इंट्रोगेटिव में, एक सिंपल वे है कि कैसे आप चेंज करोगे। दैट इज़, अगर बी वर्ब है तो बी वर्ब को सिर्फ आगे ले लेना है और सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा और बाकी क्वेश्चन फॉर्म हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, दे आर रेडी, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस दिया हुआ है तो आपको ये आर है जो बी वर्ब है उसको आपको खाली यहाँ आगे ले जाना है और दे पीछे आ जाएगा और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है, अदरवाइज द आंसर विल बी रॉन्ग। सो हाउ द क्वेश्चन विल बिकम, आर दे रेडी। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट कि अगर बी वर्ब ना हो तो आप क्या करोगे क्वेश्चन बनाने के लिए। इफ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस डज नॉट कंटेन एन ऑक्सिलरी वर्ब, अगर नहीं है, वी इंसर्ट अ सूटेबल ऑक्सिलरी वर्ब इन द क्वेश्चन, हमें एक सूटेबल ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है। जैसे नेगेटिव में आपने डू डज और डिड लगाया था, प्रेजेंट टेंस में डू डज और पास्ट टेंस में डिड, द सेम वे इन दिस ऑल्सो, खाली वो उसकी प्लेस चेंज होगी कि वो आगे क्वेश्चन है तो वो डू डज और डिड आगे लगेगा और सब्जेक्ट पीछे आएगा। तो अगर प्रेजेंट टेंस है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको डज लगाना है और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू से क्वेश्चन बनेगा और अगर पास्ट टेंस है तो डिड से आपको क्वेश्चन बनाना है और वो पास्ट टेंस है वो प्रेजेंट टेंस में चेंज हो जाएगा। और इसमें जब आप डज लगा रहे हो तो अगर आपको वो जो वर्ब है उसमें से एस निकाल देना है। सी वी विल सी द एग्जाम्पल सो दैट द आइडिया विल बी मोर क्लियर टू यू ऑल। जैसे हियर इट इज़ गिवन, ही मेक्स ऑल द डिसीशंस। अब मेक्स है, प्रेजेंट टेंस है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगेगा, तो डज से यू विल स्टार्ट, डज ही मेक्स में से एस निकल जाएगा, मेक ऑल द डिसीशंस। सो और उसका नेगेटिव अगर आप बना रहे हो, फॉर नेगेटिव क्वेश्चंस वी यूज़ द फॉर्म, उसका फॉर्म यहाँ पे आया अंडरलाइन दिया हुआ है कि ऑक्सिलरी वर्ब आगे आएगा प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगेगा और उसके बाद वर्ब या एडजेक्टिव आएगा। जैसे हियर इट इज़ गिवन एग्जाम्पल,
डज आया, फिर ही सब्जेक्ट आया, नॉट, रिमेंबर मी एंड क्वेश्चन मार्क। वी ऑल्सो यूज़ द फॉर्म, ये एक फॉर्म भी यूज़ करते हैं कि क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड्स होते हैं वो जब आप यूज़ करते हो वो आगे आता है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आता है, फिर नॉट आता है और फिर वर्ब आता है। जैसे हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क, इस फॉर्म में लगाया गया है। देन वन मोर थिंग इज देयर, वी ऑल्सो यूज़ द फॉर्म हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल V3 फॉर्म। जैसे हैज़ ही नॉट shared the documents with you, this way. I hope it is clear. Now we will move on to exercise C. उसमें what you have to do, you have to put these words in the correct sequence to form questions. आपको questions बनाने हैं but jumbled questions दिए हुए हैं, उसे आपको question form में, सीधे फॉर्म में लेके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा के लिखना है। सो जैसे मैंने यहाँ बीच में लिखा है, सेम वे यू विल ऑल्सो राइट इट विद द पेंसिल। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑलरेडी फॉर्म्ड, तो ये आपको जम्बल्ड दिए हुए उसके क्वेश्चन आपको बनाना है। तो सेकेंड आंसर विल बी हाउ डिड विराट ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। थर्ड वन, इसमें WH वर्ड है तो उससे क्वेश्चन बनेगा। वेयर डिड यू नॉट फाइंड, नेगेटिविटी है तो नॉट आ जाएगा, फाइंड क्ले पॉट्स और पीछे क्वेश्चन मार्क। देन द फोर्थ वन इज वाई डिड यू नॉट इन्फॉर्म किरण अबाउट द क्लास। जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया फॉर्मेशन, दे सेम वे आपको वही फॉर्मेशन यूज़ करके आपको इसमें क्वेश्चंस बनाने हैं। देन फिफ्थ वन इज रहमान नॉट गोइंग टू सिंग अनदर सॉन्ग। The sixth one, are they traveling right now? And in this question mark is very compulsory. If you don't put the question mark, the whole answer will be wrong. The seventh one is, have they booked their tickets yet? And the last one, are Maria and Sana performing at the right concert tonight? This way you have to, jumbled में से you have to form the proper questions. Now in this next exercise you have to frame questions for these answers, मतलब आंसर्स दिए हुए हैं, आपको क्वेश्चन फॉर्म करने हैं। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यू हैव टू फॉर्म द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द आंसर, कि आपको ऐसे क्वेश्चन फॉर्म करना है कि आपको जो आंसर है वो आंसर मिले उस क्वेश्चन का। सी द सेकेंड वन, आई केप्ट द बुक्स ऑन द टेबल। ये आंसर आपको चाहिए तो कहाँ रखी है, तो आप वेयर से क्वेश्चन बनाओगे। वेयर डिड यू केप्ट, और इसमें डिड क्यों यूज़ किया, क्योंकि इसमें केप्ट दिया है, पास्ट टेंस वर्ड दिया है, तो आपको क्या यूज़ करके करोगे, डिड वर्ड, और इसमें केप्ट का कीप हो जाएगा कि वेयर डिड यू कीप द बुक्स, दिस वे। सो यू हैव टू सी कि बी वर्ब है कि प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है, एंड देन यू हैव टू फॉर्म द क्वेश्चन। नाउ सी द थर्ड वन, मीनल एंड पायल आर गोइंग विथ यू टू द डॉक्टर। सो कौन जा रहा है उसके साथ, तो वैसे आपको क्वेश्चन बनाना है। तो आर है तो हु का इज हो जाएगा, हु इज गोइंग टू द डॉक्टर विथ मी, मेरे साथ, तो आप यू का मी कर दोगे, वैसे यू हैव टू फॉर्म द क्वेश्चन। सी द फोर्थ वन, आई एम नॉट कैरिंग एन अम्ब्रेला बिकॉज आई डोंट थिंक इट विल रेन टूडे। तो इसमें आपको रीज़न देना है, तो कौन से वर्ड से क्वेश्चन बनाओगे, वाई। वाई आरंट यू कैरिंग एन अम्ब्रेला, एंड क्वेश्चन मार्क इज वेरी कंपल्सरी। सी द फिफ्थ वन, द बैंड रिहर्सल विल स्टार्ट एट 5 PM tonight। तो कब स्टार्ट होगा, वेन से क्वेश्चन बनाओगे, वेन विल द बैंड रिहर्सल स्टार्ट टुनाइट। आपको टाइम जब पूछते हैं तब वेन से बनाते हो, रीज़न पूछते हैं तो वाई से, कोई जगह के बारे में हो तो वेयर से, तो दैट वे यू हैव टू फॉर्म द क्वेश्चन। सी द सिक्स्थ वन, एनिस विल बी ज्वाइनिंग अस इन एन आवर। तो ये भी टाइमिंग इट इज शोइंग, तो आप क्वेश्चन बनाओगे वेन से, वेन विल एनिस बी ज्वाइनिंग अस। द सेवेंथ वन इज पूजा फिनिश्ड रीडिंग दिस बुक लास्ट वीक। तो दिस ऑल्सो कब के बारे में पूछ रहे, कब किया, तो वेन डिड, और इसमें फिनिश्ड है, पास्ट टेंस है,
तो आप डिड लगाओगे और फिनिश्ड का फिनिश हो जाएगा. When did Pooja finish reading this book? And you have to put a question mark. So 8th question is, yes, I had breakfast today. So I had है वो भी past tense को denote करता है. So how the question will become, did you have breakfast today? yes करके बोला है तो आपको उसके लिए जो question form होगा, so the answer will be, did you have breakfast today? question mark. I hope, dear children, this much part is very clear to you all. Now the E exercise we will start. In this you have to convert these sentences as directed. मतलब ब्रैकेट में दिया हुआ है उसमें आपको कन्वर्ट करना है जो क्वेश्चन है वो, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उस हिसाब से. सी द सेकेंड वन. फर्स्ट वन इज ऑलरेडी डन. द लास्ट हाउस इज बिग. आपको उसको एक्सक्लेमेटरी बनाना है, पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के. सो कैसे क्वेश्चन आंसर बनेगा, हाउ बिग द लास्ट हाउस इज. जब भी आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हो तो हाउ, वाओ, व्हाट करके ऐसे करके आप एक्सक्लेमेशन दे के यू राइट इट. ओके. देन सी द थर्ड वन. रचना एंटर्स द हॉल एंड ओपन्स हर बुक. अब इसमें दिया है कि रचना हॉल को एंटर करती है और बुक खोलती है. आपको उसको ऑर्डरिंग फॉर्म, इम्परेटिव फॉर्म में बनाना है. तो आप कैसे उसको बोलोगे, रचना एंटर द हॉल एंड ओपन योर बुक्स. आपकी ऑर्डर दे रहे हो उसको, तो वैसे यू हैव टू राइट डाउन. देन सी द फोर्थ वन. कैन पूनम जंप दैट हाई. अब क्वेश्चन है, आपको उसको सिंपल डिक्लेरेटिव पॉजिटिव में बनाना है. तो हाउ यू विल सिंपल सेंटेंस कैसे बनाओगे, पूनम कैन जंप दैट हाई, कि पूनम जंप कर सकती है. देन फिफ्थ वन इज, फादर इज गोइंग टू बाय न्यू कटलरी टुमारो. आपको उसको क्वेश्चन फॉर्म करना है, इंट्रोगेटिव बनाना है क्वेश्चन फॉर्म करके. तो आप क्वेश्चन पूछोगे, इज फादर गोइंग टू बाय न्यू कटलरी टुमारो, एंड यू विल पुट अ क्वेश्चन मार्क. देन द सिक्स्थ वन इज, डू नॉट एंटर अ रूम विदाउट नॉकिंग फर्स्ट. ये एक ऑर्डरिंग सेंटेंस है, उसको आपको क्वेश्चन फॉर्म में बनाना है. सो हाउ यू विल चेंज कि डू यू नो, कि क्या तुम्हें पता है, दैट यू कैन नॉट एंटर अ रूम विदाउट नॉकिंग फर्स्ट. दिस वे आपको चेंज करना है. सेवेंथ वन इज, विनीता कैन डांस रियली वेल. सो एक्सक्लेमेटरी यू हैव टू चेंज. तो हाउ से लिखोगे, हाउ वेल विनीता डांसेस. एंड द लास्ट वन इज, नीलम विल रिटर्न हर लाइब्रेरी बुक्स टुमारो. तो ये आपको इम्परेटिव ऑर्डरिंग फॉर्म में कर रहे हो, तो आप कैसे उसको बोलोगे, नीलम यू विल रिटर्न योर लाइब्रेरी बुक्स टुमारो. दिस वे. आई होप, डियर चिल्ड्रन, दीज 5 exercises are clear to you. You have to write this exercise how I have written with a pencil, बीच में जहाँ जगह है वहाँ पे. So till that time read the rules and write it properly. In the next part I will explain you the other exercises. Thank you, dear children.